women empowerment. Tell us about women struggle. तो पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये तो आदमियों की दुनिया है और औरतों के लिए बहुत मुश्किल है. इतना आसान नहीं है लड़कियों के लिए कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Are the men getting better nowadays? Like, Men are curious. for an example, take husband and wife. If both are earning, so how does it affect their adaptability, adjustment? एक आदमी और एक औरत एक दूसरे को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हमने मूवीज में देखा है ऑल इज वेल और बहुत हद तक इसने हेल्प भी किया है. ऑल इज वेल एटीट्यूड का अपने लाइफ में होना आपको लगता है कि जरूरी है? That will not always help because What is a female's role in another female's life? तो एक लेडी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि वो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप. आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ख्याति गुलचा हैं. शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड आज वो स्टूडियो में बिकॉज लास्ट एपिसोड वी डिड अ पॉडकास्ट ऑन मेंस हेल्थ एंड टुडे वी हैव डॉक्टर ख्याति गुलचा. आज हम फीमेल हेल्थ पे बात करेंगे एंड विल टॉक ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, लाइक द मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सारी चीज़ों पे. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर ख्याति गुलचा एंड गाइज लेट्स हियर इट, उन्हीं के मुँह से सुनते हैं उनके बारे में. Hi everyone, I'm Dr. Khyati Golcha. I'm a clinical psychologist. I have completed my PhD in clinical psychology and I have an experience of over 5 years in the field. I have worked for clinics, hospitals. I even have my private practice now. Apart from that, I have trained the police department for stress management and mental health. I have also done radio shows. I also train clubs, organization and business groups in order to build their skills, resilience. तो डॉक्टर ख्याति गुलचा, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. आपका प्रोफाइल तो बहुत लंबा है. यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव कम टू द स्टूडियो बिकॉज आई हैड सम जेन्युइन क्वेश्चंस अबाउट वुमेन हेल्थ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट विद द सीरियस क्वेश्चंस, नाउ दैट यू हैव टोल्ड अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड स्टफ, how did you get there? Tell us about why did you choose psychology and was it always your passion कि like somewhere down the line आपने route change किया? Tell us about that. Okay, so initially I was not aware. I did not decide on taking up psychology. बस जो ट्रेडिशनल होता है कि MBA कर लो, engineering कर लो, वैसा फैमिली में Right, था कि right. आप जॉब कर लो. तो once I graduated, मैं बॉम्बे भी गई थी जॉब करने और मैंने 8 महीने वहाँ पे जॉब भी की, डेस्क जॉब, और मैं एक बिजनेस मैनेजर जैसी थी. तो कॉलिंग अप क्लाइंट्स, फिक्सिंग मीटिंग्स, थिंग्स लाइक दैट. तो वो मुझे फुलफिलिंग नहीं लगा. And one day I simply called my mom and told her that I don't want to continue this. मजा नहीं आ रहा है. And she was also elated. Come back to Nagpur, please come back. And that's how I came back and I decided that I don't want to go into, I never want to do a job again. Yeah. And I chose psychology क्योंकि बचपन से ही थोड़ा मैं ये अवेयर थी कि मेरे में एम्पैथी बहुत है, मैं लोगों को समझ सकती हूँ, उनके इमोशंस को समझ सकती हूँ. And psychology is a science of all of that only. Right. So it was very fascinating to me and that's how I got ahead. I think men are strong. Men do the physical work, but I think this world, like, I personally believe females are superior because they create A woman and they carries nurture. both man and woman. I personally believe a female have a bigger responsibility in the society than men. Absolutely. Men work, but women are the one who make men. So if there's a guy who is brought up well, just he'll be good to the society. Absolutely. It depends on the mother, the lady of the house. Exactly. See, there's a womb inside a woman. Yeah. जहाँ पे वो बच्चा कैरी कर रही है. Right. The house that she creates, the home that she creates, Right. is also a womb. Yeah, true. That is also a surrounding जहाँ पे वो अपने बच्चों को nurture कर रही exactly. है. और And that I personally believe that is the most important beauty in a society. How you raise your kids, Absolutely, because they are the absolutely. future, and how they will behave in the society is what society is. And when we're talking about verses, like, matlab, there's a little feeling about verses, men and women. I feel that there's no point in competition as such because You are not created equal. I don't think we are created equal. No, but Men are then- physically stronger. but then we Men are the same species. No, it's okay. We are But both we Homo sapiens and Yeah. we belong to one humanity. Right. There is of course difference. Yeah. Men have more efficiency. True.
women have more grace and heart. But that's what I'm saying. To make the economy, you need men. But to make men, you need good women. Absolutely. So basically, women have a bigger responsibility in that. And now talking about all these things, Dr. Khyati, हमारे देश में ये एक और प्रॉब्लम है कि वुमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. A lot of people think they are just there to reproduce and stuff like that. And a lot of people nowadays understand such problems and उसको rectify भी कर रहे हैं. So tell us about this. When I say that women are responsible for making good men in the society, so if there are such men who objectify women, don't you think that somehow, somewhere down the line, the women in their family are responsible for how they're treating the other women outside? Okay, to rephrase your question, you're trying to ask Take your time. the existing woman in the family, how she's No, I'm treating. saying the mentality of the men. Okay. Like a Of lot of men objectifying. think that women are there just to make babies and just have a family. They don't have a say. Absolutely, absolutely. So it stems out, this mentality stems out from somewhere. Correct. But that's what I'm saying, that women are more responsible for a better society. So if we have men in the society who think that women are object, don't you think that women are equally responsible for such mentality that their kids or sons have? Okay, Or don't you think that the so mothers could have done better in telling the... Absolutely. Yeah, that's my question. Absolutely. Yes. So I have this opinion that, and I say this often, that people say beti padhao, beti bachao. It should be beta padhao. Right. बेटी अपने आप बच जाएगी. That's even the upbringing matters. Sorry to cut you, but even the PM said that when Beti Padhao, Beti Bachao Abhiyan was going on, Modi ji in a live conference or whatever said कि बेटियां तो हमारी अच्छी हैं, हमारे बेटों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. So I accept, like what you are saying is something that he also said. Absolutely. To have a better society and a more caring society, you need to have better men in the society. And but don't you think to have better men in the society, we need better mothers? Yes, but we need better mothers. Again, to need better mothers, kahin na kahin we have to break that generational cycle. See, as in? सालों से सदियों से women feel that they are the caregivers of the family, right. Mothers, they are selfless कि मुझे मेरा सब कुछ त्याग के सबको खुश रखना है, I have to bring these people up वगैरह. True. That has become their sole responsibility. कि बस एक लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सबमिसिव हो और आगे वाले और अपने घर वालों की खुशी के लिए मतलब वो खुद का कुछ से ना हो, उसका कुछ से ना हो. The same mother with same belief, उसके वो mother के भी वही beliefs है ना, that I have nothing, मेरा कुछ priority नहीं है, everything is for the people around me. Right. तो वो same चीज अपने बेटे को भी pass down करेगी ना, that you are the one who is important and the या फिर बेटा वही देख रहा है. हाँ वही देख रहा है कि यार मेरी मम्मी तो यही कर रही है. She is submissive. So this is how women are supposed to be. Like right. They are just supposed to listen Break to their husband. Break the generational cycle, and the sons should also see that my mother is not such, so I cannot treat my wife in the same manner. But don't you think education is helping? Like the more education is increasing in India, like the more I should say the women are eased out. Like the more education, like the men are giving more opportunities to the female now, and like stuffs are happening. So don't you think कि अभी धीरे-धीरे there's a shift in balance ki ab धीरे-धीरे the men are also trying to bring women into the work field and academy and all kinds of field. What do you think about that? See, we're talking about it, sure. The awareness has begun, absolutely, right? But again, there are areas that still need to be worked on. People are getting sensitized. हम बात कर रहे हैं is the very fact कि it is happening, right? Sensitization हो रहा है, पर वो behaviors में और mentality और beliefs change होने में थोड़ा time लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी. But don't you think it's in the process? Like it's getting better. Absolutely, it's getting better. Like I see, like in the last 20 years, the shift in the freedom that women get in this country, at least. See, talking about liberalization में we see nowadays the women and the girls around us. Right. Liberalization should be when
जो इंसान है वो वही बन सके, that is liberalization. So Right. a woman should become more like a woman. That is liberalization. A woman has heart, a woman has caregiving, a woman is nurturing. So if I am liberal today, I should be more of a woman, not more of a man. True. So what is happening So in what makes most you more of a places, woman than a man? more of a woman than a man is just grace, heart, softness. But when you talk about that women are meant to nurture families, what do you think is the most important duty of any person, like Mhm. be it male or a female? I think, what do you think? I'll tell my answer later because I Okay. always throw the question and give my answer. Okay. So what do you think? What do you think about this? तो एक लेडी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि वो एक घर बना रही है, True. घर से सोसाइटी बन रही है, सोसाइटी से देश बन रहा है और उसी से दुनिया बन रही है. Right. That is why she has the superior qualities Right. of giving life. So basically, how your society is, how your country is, basically it's all depends on how your family is. Absolutely. Yeah. Yes. Coming back, I think I'll again say that women have more important and a bigger responsibility than men in the society as far as I think. Mm-hmm. Because what kind of a men we have in society depends on what kind of mothers we have. ठीक है, मैंने अपने बहुत सारे opinions दे दिए, Dr. Khyati, I'm sorry. अब I'll get to the main topic. I genuinely see a lot of struggle for women in the society. Mm-hmm. I am married, I have a wife, and I have seen complexity when woman gives birth, and then there's a lot of hormonal changes and there's a lot of emotion. When it comes to the freedom of choices and stuff, if we keep aside that, the role that woman plays of reproducing and getting this like baby and having this responsibility to have a good family, can you tell about this, these pressure of all these expectations and all, how does it affect a woman's mental health, like all these expectations from a woman? Absolutely. A very important question again. So having a baby or being a mother is considered like the ultimate milestone in a woman's life, that Right. माँ बन गए, है ना? Mhm. But there's a lot of byproducts of being a mother. Okay. First, if it's a pressured child, if it wasn't her personal choice to have a child, then that it can come with a lot of anxiety, Mhm. right? Right. Second, many women experience postpartum depression once they deliver the baby. Postpartum is like after the delivery phase. Yes. Okay. So what happens is now she is disconnected from the child because now the child has left the body. Right. So now she has to adjust again. It's not easy to just cord काट दिया umbilical और अब बच्चा अलग हो गया. Right. It's very difficult for her to again adjust. Then there are changes in her body, weight, the way she looks. उसके हाथ अलग दिख रहे हैं, पैर सूज गए हैं, वेट बढ़ गया है, लोग देख रहे हैं, राइट? There are a lot of changes that are happening. बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है वापस बेबी को जन्म देने के बाद, स्लीप साइकिल पूरा हैपेजार्ड हो गया है, राइट? तो अब क्या होता है कि जब बच्चा हो गया तो सब चाहते हैं कि माँ खुश रहे, राइट? ये खुश क्यों नहीं है? ये तो सबसे अच्छा होता है, एक माँ बन गई है, अब खुश क्यों नहीं है? So having that pressure of, in spite of being disturbed somewhere and disconnected somewhere, she has to look happy. क्योंकि अगर सबको ऐसा लगता है कि ये disturbed है, people will tell her कि क्यों खुश नहीं है, and that brings a lot of shame and guilt in a mother that probably I'm not a good mother, right? Okay. Oh, I get you. And this will go on for a very long time. And people are not aware about this happening to a woman. लोग बात ही नहीं कर रहे कि क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, या लोग सोचते ही नहीं है. तो 60% of the women go undiagnosed. As far as you are concerned, do you think you have made any kind of slight, what do you call it, change in the way the things are there for, like, have you helped any woman, like, do you have certain kind of, can you tell us about somebody? Absolutely. So again, there are many ways in which you can help such a woman. The first is by telling her that what she is feeling is valid. Right.
शी क्वेश्चंस हर ओन फीलिंग ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बुरी माँ हूँ, है ना। और वो जब फीलिंग आ जाती है, बहुत शेम डेवलप होता है. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव शेम. Validating their feelings, that it's okay to feel this way. We understand you. Right. What you're feeling is valid. Right? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी. It is valid. So Let's not they deny should it. know that it's a natural feeling. You Yeah. are not feeling anything Yeah. exclusive. Yeah. नहीं feel कर रहे. जैसे a very red flag I would say that happens is that if she tries to communicate, and not just women with PPD, any woman who's suffering any struggle in life or in family, if she tries to communicate, उनका उस तरीके से फील करना, डिनाई कर देना, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी लगता है, ये तो इतनी छोटी सी बात है, हाउ कैन यू completely फील shut दिस off वे. कर देना है हाँ, मतलब. मतलब यू आर कंप्लीटली डिनाइंग. नाउ see, the family is supposed to be your caregivers, right? They are the people you trust. True. And if you reach out to them and if they deny how you feel, then you'll be shut. You'll keep it to yourself, right? So first is validating. Second, to create a safe space for her without being judgmental, without using words like तुम बुरी माँ हो, ऐसे कैसे बच्चे को बड़ा करोगी. So do you have such clients in your past? Yes, I've dealt with them. So tell me about their husbands. Do you have like, were they cooperative? Do they like, how are the men getting better nowadays? Like, So I want to women, ask you I that. would say about men are curious. ऐसा नहीं है कि they don't want to understand. Most of the men that I've dealt with, they want to know what's happening. Right. They want to be sensitized, right? उनको अगर मैं बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा फिनोमिना होता है, that's a new awareness for them. For them, true. उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि अरे ऐसा भी होता है इसके साथ, right? Right. So I would say they are open to understanding the state of a woman, which is a good sign. Which is a good thing. It's a good Yeah, sign. Yeah. Yes. So it's getting better, you mean It's to say. getting better, absolutely. But awareness needs to be there. वो लड़की को खुद भी पता होना चाहिए उसके साथ क्या हो रहा है. Right. She cannot put a name to it unless she knows about it, right? So basically, postpartum जो term आप use कर रहे हैं, basically the woman need to know कि जो वो feel कर रही है, वो कुछ अनकॉमन फील नहीं कर रही है, ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है जो और भी मदर्स. एग्जैक्टली. राइट. सो वंस उनको जब ये पता चलता है कि जो हम फील कर रहे हैं, इट कुड बी हार्मोनल, और दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट पीपल. करेक्ट. सो आई थिंक it will be better for their mental state to realize कि no, nothing, I'm sane, I'm perfectly normal, and this is how a normal person. Correct. It's okay to not be okay. Yeah, it's okay to not be okay. And the family would obviously play a very important role in creating a safe space for her. That it's okay, we don't judge you. Yeah, which is very important. You can take your time. That she have that space where she has that freedom for herself. It's very important in a family nowadays. Correct. आजकल डॉक्टर ख्याति डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड है. तो लोग कितने डिप्रेस्ड हैं, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, क्या डिप्रेशन है क्या एग्जैक्टली? बिल्कुल. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन बीइंग सैड एंड बीइंग डिप्रेस्ड, राइट? सो इफ फॉर एग्जांपल आज सुबह मेरे साथ कुछ अनप्लेजेंट हो गया और मैं आपसे नरेट कर रही हूँ, और अगर मैंने आपसे ऐसा बोला दैट आई एम डिप्रेस्ड या मुझे तो डिप्रेशन हो गया, दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर. It's a very strong word, you mean? Yeah, it's a very strong word for sadness. It's sadness that you're feeling. It's temporary. You'll be fine again tomorrow, right? But the ones who are suffering from depression, it's a disorder. बीमारी है डिप्रेशन. तो डिप्रेशन में ऐसा होता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, या एक सबसे बड़ा चेंज होता है स्लीप. जो लोग डिप्रेशन में हैं, या तो बहुत ज्यादा सोएंगे, घंटों घंटों उनको सोना अच्छा लगेगा, दे डोंट वांट टू वेक अप एंड फेस द वर्ल्ड, या फिर सो नहीं पाएंगे बिकॉज देयर ब्रेन इज कंटिन्यूअसली ट्रबलिंग देम. सेकेंड इज एपेटाइट. अब ये लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, दे आर नॉट माइंडफुल, या खाना एपेटाइट इनका लॉस हो जाता है, दे डोंट फील लाइक ईटिंग, राइट? बोथ एक्सट्रीम. यस. और नॉर्मली जो चीजें करने में इनको इंटरेस्ट रहता है या मजा आता है, दे लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स.
फैमिली और रहते कहीं और है, मेंटली कहीं और है, चीज़ों में मन नहीं लगता है। और अब एक और चीज़ दैट इज़ वर्थ नोटिंग कि बहुत सारे लोग आपको बाहर से एकदम ठीक लगेंगे कि वो लड़का हँस रहा हुआ दिखेगा कि ह हँस रहा है कंटिन्यूअसली और खुश है और गाना गा रहा है। पर ऐसे लड़के को भी डिप्रेशन है, हो सकता है। राइट। तो बहुत लोग उसको कवर कर लेते हैं एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस लाइक आई सेड इन बीइंग। तो ये वर्ड बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। यू आर एक्चुअली जिसको असल में डिप्रेशन है आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो अगर बोल रहे हो कि आपको एक दिन का डिप्रेशन है, क्योंकि ये महीनों से वो चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है और आपने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे भी डिप्रेशन है। सो दैट्स नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। ख्याति जी, आपने तो काफ़ी विलेजेस एंड बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज में भी काम किया है। वहाँ के कुछ कॉमन इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किया, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे? सर्टेनली। तो जो विलेजेस है वहाँ की या जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ के लेडीज के चैलेंजेस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। Different because first and foremost there's lack of sanitation and hygiene, या right? Which is very important. तो वहाँ पे cleanliness, hygiene ये सब का बहुत lack है. Second, in such areas ज़्यादा likelihood है कि women को बहुत ज़्यादा dominate किया जाता है. They don't have any say in the family. Third, could be there's a lot of lack of privacy. राइट। बहुत ही closed spaces में रह रहे हैं आप और इतना क्लोज स्पेस है कि आपका पड़ोसी एकदम लग के है बाजू में एंड इज ऑल द टाइम कैन हियर एंड सी यू ऑल द टाइम। तो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है लेडीज के लिए। अनदर फैक्टर इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट द वुमेन फेस डे टू डे नीड्स के लिए या रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, जिससे उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हेल्पलेसनेस फील होती है कि मजबूरी जो होती है। तो ये लेडीज में ये बहुत है और सैडली इनमें अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है कि ये कैसे खुद के लिए कुछ कर सकती है। आपने जो काम किया, इज इट मोर लाइक अ अवेयरनेस कैंपेन या इन लोगों से जो आप व्हाट डू कॉल इट, द मीटअप्स एंड ऑल दैट हैपेंस, तो आपके व्हाट आर द कॉमन इश्यूज यू गाइस टॉक ऑन, लाइक उनके क्या कॉमन इश्यूज आपको मिलते हैं या आपके ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लगा कि मतलब सबसे ज्यादा फोकस किन एस्पेक्ट पे करना चाहिए बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज में? Okay, in the backward and rural areas, the main problem should be giving women respect. वहाँ पे लेडीज को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल वो नहीं है। दे आर ओनली ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स या बस ये हमारी फैमिली बढ़ाएगी या घर का काम करेगी, उससे ज्यादा उनका कुछ रोल नहीं है। इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत होता है। राइट। That is another big problem that you will find. So the WHO says कि हर 3 में से एक औरत के साथ इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। 1 out of every 3 women in India are, you know, abused domestically. yeah, and most of them come from the backward areas. Okay. तो अब ये ट्रॉमा वाली चीज भी उनमें है कि उनमें उनको इतना रिस्पेक्ट इनफ नहीं किया जाता कि उनको कैसा महसूस हो रहा है वो कुछ मैटर करे। मैटर नहीं करता लोगों के लिए। गाय भैंस भेड़ मतलब जो भेड़ बकरी रहते हैं वैसे उनको ट्रीट किया जाता है। देयर फीलिंग्स डोंट मैटर। सो जस्ट वन थिंग, अगर उनको रिस्पेक्ट दे दी जाए दैट वुड बी अ वेरी गुड चेंज। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, आपको नहीं लगता है अभी? माइंडसेट बैकवर्ड एंड शिफ्ट या will take time, but I think हम लोग we are on the way, दैट्स like द slow वन but बिग स्टेप दैट कैन हेल्प इन मेनी वेज। रिस्पेक्ट। मेंटल हेल्थ का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कैन यू एक्सप्लेन? बिल्कुल। तो हमारी कंट्री इंडिया हैज अ वेरी वेरी रिच कल्चर, ट्रू। राइट? अभी ऐसा हो रहा है कि दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया में 1 out of every 5th person हैज अ मेंटल हेल्थ इशू। राइट। तो अब क्या हो रहा है, दुनिया के लोग पीस की तरफ भाग रहे हैं कि हमको कहाँ पे शांति मिले, है ना? दे आर गोइंग टू
तो अब जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में होता है योगा, मेडिटेशन, नाउ यू विल सी फॉरेनर्स आर कमिंग टू द ईस्ट या एंड दे आर सीकिंग दिस नॉलेज फ्रॉम अस। या हमारे आश्रमों में हमारी किताबें, अभी आप देखोगे अमेरिका में योगा हो रहा है, योगा क्लासेस हो रही है, राइट मेडिटेशन, यू सी सुदर्शन क्रिया होता है, आर्ट ऑफ लिविंग, पूरे दुनिया भर में सेंटर्स है, इस्कॉन टेम्पल्स आर एवरीवेयर, सो स्पिरिचुअलिटी हैज स्प्रेड इट्स विंग्स एवरीवेयर। तो ये जो ईस्टर्न विजडम है जो हमारे पास है, स्पिरिचुअलिटी जो हम बोल रहे हैं, इससे बहुत हद तक हमारे मेंटल हेल्थ को बेनिफिट मिलता है। टॉकिंग अबाउट योगा, मेडिटेशन एंड दीज प्रैक्टिसेस, सबसे पहले ये आपका जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिड्यूस करता है। तो यू फील बेटर व्हेन यू ब्रीद, आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, तो ये बॉडी के केमिकल्स को बैलेंस करने लगता है एंड यू फील इन कंट्रोल instantly, right? So meditation helps that way. Meditation का और एक benefit ऐसा है that when you meditate, आपका focus, memory, cognitive functions, यानी जो मेरे brain functions है, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, वो सब sharp होने लगते हैं। Studies actually बताती है, MRI scans बताते हैं कि brain में जो grey matter है, वो एरिया का ग्रे मैटर थिकन होने लगता है, यानी आपका ब्रेन और अच्छा होने लगता है व्हेन यू मेडिटेट। और आपके जो फंक्शंस हो गए डे टू डे, चीज़ों को याद रख पाना या प्रोसेसिंग कर पाना इंफॉर्मेशन, या आप बात कर रहे हो जिस तरीके से एक फ्लो में कर पाना, जब आप मेडिटेट करते हो योर फंक्शंस गेट बेटर एंड रिसर्चर्स हैव प्रूवन दिस विद MRIs। सो मेडिटेशन अगर एक एस्पेक्ट है तो व्हाट अबाउट वर्कआउट? डू यू थिंक कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेन एंड वुमेन, लेट्स जनरल वे में पूछते हैं कि Homo वर्कआउट sapiens। से या लाइक वर्कआउट से भी आपके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? बिल्कुल। सो मूवमेंट सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं है, इट्स आल्सो फॉर योर माइंड। सो द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग, तो जो अच्छे केमिकल्स है आपके बॉडी के, सीरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन्स है, दे स्टार्ट टू रिलीज व्हेन यू मूव योर बॉडी। एंड not just exercise or going to the gym, take any physical activity, take dancing for instance। आप देखोगे कि कोई भी आदमी जो नाचते हुए दिख रहा है आपको, वो दुखी हो ही नहीं सकता। A person who is dancing, you will notice, can never be unhappy. In that moment, every person feels happy because the body is moving. तो वो आपके केमिकल्स रिलीज करता है एंड एक्सरसाइज इट अपलिफ्ट्स योर मूड इन मेनी वे। सो इसलिए बोलते हैं कि दिन की शुरुआत आप थोड़ी मूवमेंट से करो तो एक टोन बन जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सॉरी टू आस्क बट बहुत लोग बोलते हैं यार अल्कोहल पीता हूँ तो दर्द कम होता है। तो यस, ये तो बहुत ही इस पे तो गाने वगैरह भी बने हैं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, है ना? यस और यस तो दिस हैपेंस, बट इज इट ट्रू? it's not true. It's not at all true. I thought it's true. It's not true. I'll tell you why. Again, now you have a problem in life. Say for example, आप relationship issue है and you are stressed about it, right? And now आपके जो काबिल दोस्त यार है, वो आपको बोलेंगे चल एक पेग लगा ले, सब ठीक हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है। पर once you have drunk, once you have felt euphoric कि अरे वाह बढ़िया लग रहा है, after that when you come home, the issue is still there. Yeah, it doesn't go. It hasn't gone anywhere. Instead आप उधर बैठ के उसको solve कर लेते, आपका stress खत्म हो जाता। और होता क्या है कि आपने शुरू तो कर दिया पीना, कि दोस्तों ने बोला अरे पी लो, अभी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पी के, अभी कल मुझे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए to feel the same, right? तो अब क्या हो गया, अब मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया कि अब वो अफोर्ड करना पड़ रहा है मुझे, आई हैव टू स्पेंड, सो योर फाइनेंशियल स्ट्रेस इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड अ पर्सन हु इवेंचुअली बिकम्स डिपेंडेंट ऑन नॉट जस्ट अल्कोहल, एनी सब्सटेंस, अब वो उसकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा है, तो उसकी वो प्रॉब्लम अब उसके पूरे घर की प्रॉब्लम बन गई है। बिकॉज इमेजिन अ पर्सन हु, आपका दिमाग और दिल आपके काबू में नहीं रहता, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड वंस यू आर इंटॉक्सिकेटेड। सो इमेजिन अ फादर कमिंग होम वन डे, ही इज बीइंग गुड टू द चाइल्ड, प्यार कर रहे हैं, अरे वाह यू वेरी
बहुत अच्छे हो, अगले दिन उनका मूड खराब है, गुस्से में आया और 2 थप्पड़ मार दिए या और बहुत चिल्ला गुस्सा दिया, कर डाँट दिया, दिया, हाँ, क्रिटिसाइज कर दिया, राइट। बुरा-बुरा बोल दिया। तो दिस इज़ व्हाट सब्सटेंसेस डू। आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहता और आपने तो कर दिया, पर उससे आपके घर पे क्या असर हुआ, रिलेशनशिप्स पे क्या असर हुआ, आपने दूसरों की बॉडीज़ खराब कर दी। आप तो दारू पी के खुद की कर ही रहे हो, दूसरे को ट्रॉमा में डाल के उसका भी शरीर खराब कर रहे सो हो। बेसिकली दोस्त जो बोलते हैं कि चल सैड तो चल दारू पीते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना, उहुँ। आपका कहने का मतलब है। काम इससे द पीपल हू आर वर्किंग इन योर फैमिली उनका एब्सेंटिज़्म बढ़ जाता है। राइट, Because they cannot focus on their work, they are worried, they are stressed because of you. इसलिए मैंने बोला इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन्स प्रॉब्लम, वो पूरे घर की प्रॉब्लम बन जाती है। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी मेंटल हेल्थ का एक अवेयरनेस होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए, बचपन में करिकुलम में होना चाहिए। जो मिसिंग है? जो मिसिंग है, बच्चों को बताना चाहिए कि सेल्फ लव क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है। जो बुली करते हैं बच्चे दूसरे क्लासमेट्स को कि अरे तेरे पास तो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, अरे तू तो ऐसा दिखता है। राइट, बच्चों को भी बचपन से ये एजुकेशन होना चाहिए कि आप सेंसिटिव सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है। राइट, अगर आप सोच समझ के किसी से बात करें कि उसको हर्ट नहीं हो, इट्स अ गुड थिंग। या सो द चिल्ड्रन शुड बी सेंसिटिव एज़ टू हाउ दे आर बिहेविंग इन द वर्ल्ड। उनको खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। उनको अगर देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो हमको नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में आप देखते हो, स्कूल्स के बच्चों में भी बहुत सुसाइड केसेस आपको दिखते हैं, राइट, है ना? कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए, कोई दोस्त ने बैकस्टैब कर दिया, तो वो डील नहीं कर पाते, दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ उनको इट। लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। हाँ, बिकॉज़ दे हैव नॉट बीन टॉट हाउ टू डील विद इट। ट्रू, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप और होगा क्या ना कि जितना अर्ली आप शुरू कर दोगे, उतना उसका सफरिंग बच जाएगा। You imagine I sit in therapy, right? I take therapy तो अ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो अपने ज़िंदगी भर के बचपन से क्या हुआ, फिर मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ, राइट, पूरा इतने सालों का भरा हुआ पूरा लेके आते हैं ट्रक। ट्रू, और वो अडल्टहुड में फिर उनको सिखाना पड़ता है कि अब क्या करें। ऑफलोड कैसे तो करें? अगर हम ये बचपन में ही कर दें, तो उसकी कितनी सफरिंग बढ़ जाएगी बच तो जाएगी। तो अगर हम अपने मतलब बुक्स में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस दें करेक्ट, एंड यू मीन टू से कि सेल्फ लव एंड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में करेक्ट, थोड़ा टीचिंग दें, करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी सिग्निफिकेंटली फ़र्क पड़ेगा। बहुत रिड्यूस हो जाएँगे और आप राइट, देखेंगे कि मैक्सिमम जो हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, अब हम बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ हम अलग-अलग कर रहे हैं दोनों राइट, को। फिज़िकल हेल्थ हम सबको पता है, बचपन से हमको सिखाया जाता है टेक्स्ट बुक में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ट्रू, प्रोटीन वगैरह वी नो एवरीथिंग। हमको पता है हमारा पैर टूट गया, डॉक्टर के पास जाना है, फ्रैक्चर लगवाना है, पट्टी बनवानी है। हमको ये नहीं पता कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मैं उससे कैसे डील कोई करूँ, कोई ट्रॉमेटिक लॉस हो इंसिडेंट जाए या तो कुछ, कैसे ओके, डील राइट, करूँ, रोऊँ कि नहीं रोऊँ, क्या बोलूँ? आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ट्रू, तो अब ये दोनों चीज़ अलग-अलग है, हमने बोला मेंटल हेल्थ इज़ डिफरेंट, फिजिकल हेल्थ इज़ डिफरेंट बट माय माइंड इज़ अ पार्ट ऑफ माय बॉडी ओनली, वेरी ट्रू, राइट? So if something is affecting my mind and it's functioning, it will affect my body, वेरी ट्रू, right? या तो जो भी केमिकल्स वो टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं, मैक्सिमम डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द माइंड। जो सप्रेस करके रखा है, आपका दिमाग आपके पूरे शरीर को असर करता है। वेरी ट्रू। राइट फ्रॉम योर स्किन इश्यूज़, राइट फ्रॉम योर टू योर हेयर फॉल, टू हार्ट एलिमेंट्स, सब कुछ आपके मेंटल हेल्थ से अफेक्ट होता है। सो बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में डालना ज़रूरी है कि योर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सिर्फ़ फिज़िकल और सिर्फ़ दिखना इज़ नॉट And you know, इम्पोर्टेंट। girls should be talking about women, girls should be taught right on from early age that you don't have to be a people pleaser. Don't be a good girl. Don't please and keep everybody. You cannot keep everybody happy. आप सबको खुश रख भी रहे हो और आखिर में आप ही दुखी हो, then what is the point? बट मैंने शुरू में भी कहीं न कहीं इसमें डोंट यू थिंक द मदर्स हैव अ रोल टू प्ले? Absolutely. Mothers और अगर mothers नहीं aware है तो schools can also do that job. या तो that कि girls should be educated as to how they should be, self love क्या है, and boys should also be educated as to how to look at themselves. देखो लड़कों
का मेंटल हेल्थ इश्यूज एकदम अलग है लड़कियों से, वेरी ट्रू, उनमें भी है। मर्द को दर्द नहीं होता ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द बहुत दर्द होता होता है, है, हाँ, पर लड़कियां रो देती है या उनको कैरेक्टर, अरे रो तो, कोई लड़का रो रहा है तो उसको तो लड़की बोल देते हैं ना, कमजोर बोलते हैं, लड़की है क्या क्यों रो रहा है, तो दैट्स द, तो लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है बी अ मैन, डोंट क्राई। डोंट बी अभी एक्सप्रेसिव, देखो, अगर भगवान ऐसा चाहते हैं कि लड़के ना रोए तो वो उनको टीयर ग्लैंड्स देते ही नहीं। टीयर ग्लैंड्स मुझ में भी है, आप में भी है, सेम है। वेरी ट्रू, आप भी रोने के काबिल आपको भगवान ने बनाया, मुझे भी बनाया है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ क्राइंग। क्राइंग लेकिन लड़कों में नहीं निकल पाता है, वो उनका अलग तरीकों से निकलता है, गुस्सा नहीं, वगैरह। क्योंकि बहुत जगह तो ये बोला जाता है कि हम लोगों को भी कि रोना तो मतलब कौन रोतलू है, मतलब लड़कों के लिए रोना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एम्बैरेसमेंट, लड़कों को लगता है मैं रोऊंगा मुझे लोग देखेंगे तो वीक क्या सोचेंगे, लगूंगा, हाँ, उफ। सो बिकॉज हम लोगों को भी बचपन से सिखाया जाता है कि एज मेन और एज बॉयज यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू कांट बी अ रोतलू बच्चा। नाउ सी, अब मुझे बताओ, लड़के इतने अगर स्ट्रांग बन गए हैं वगैरह, तो हार्ट अटैक सिर्फ लड़कों को क्यों हो रहे हैं इंडिया में? लड़कों को ही हो रहे हैं, लड़कियों को मतलब विमेन हैव वे लेसर चांसेस ऑफ आई हार्ट थिंक अटैक्स देन मेन। इसका ज्यादा ब्लेम हमको स्मोकिंग को देना चाहिए। नॉट स्मोकिंग, ये जो आपके सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इमोशंस है, दिस इज योर हार्ट चक्रा, यहाँ पे पूरे सप्रेस्ड है, इट तो अफेक्ट्स योर हार्ट। ये जो दिस कांस्टेंट चेंज इन हार्ट बीट्स एंड ऑल विद आवर इमोशंस, यही आप बोलना चाह रहे हैं कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर फीलिंग्स? एब्सोल्युटली डायरेक्टली लिंक्ड। आप सोचिए, जब कोई सिचुएशन में डर लगता है, डर लगता है तो दिल की धड़कन बढ़ती है राइट, तेज। राइट, क्या होता है, एड्रेनलिन जो हमारा हार्मोन है वो तुरंत रिलीज होता है, वो हमको हेल्प करता है कि अब मैं ये सिचुएशन से अपनी बॉडी को तैयार कर देता है कोप वो करने एकदम के लिए, ट्रू, टू कोप। सो द केमिकल्स आर रिलीजिंग एक्टिवली इन योर बॉडी, योर हार्ट इज गेटिंग अफेक्टेड। एक आधी बार ठीक है, आप समझिए कि कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रेगुलर बेसिस पे रह रहा है कि उसको रोज डर लग रहा है, उसको रोज भागने की जरूरत है ना, तो इतना ज्यादा केमिकल रिलीज होना इज ऑल्सो नॉट गुड। सो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो हार्ट पे अफेक्ट करेगा यस, मुझे। इट विल अफेक्ट द हार्ट। एंड क्राइंग इज नॉट बैड। आई देखो, थिंक क्राइंग इज हेल्दी, आई थिंक, इट इज हेल्दी। चाहे आप खुशी में रो, चाहे दुख में रो। देखिए, रोना तब आता है जब आप आपके खुशी या गम को कंटेन नहीं कर पा रहे हो, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ मुझे कैसा लग रहा है, ट्रू, दैट्स द टाइम दैट आई विल क्राई, बिकॉज आई कैन नॉट, एक्सट्रीम इमोशन, हाँ, या I cannot contain it in my words as to how I feel, and that's the time I'll cry. But men are not allowed to do this. Yeah, again, उनके लिए भी एक safe space बनाना चाहिए कि it's okay you cry. या There's nothing यू wrong आर with नॉट crying. वीक इफ यू आर क्राइंग, Yeah, absolutely. You are courageous if you talk about your problems. या Talk about it. अभी के टाइम में लाइक विद द मूविंग टाइम्स नाउ दैट मोर फीमेल आर इनटू वर्क फील्ड एंड स्टफ, सो जो लोग खुद अर्न कर रही है, जिनका अपना बिजनेस है या जॉब है, इनकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में कितना अफेक्ट करती है, लाइक नाउ डेज, लाइक बिकॉज लॉट ऑफ वर्किंग स्टाइल हैव चेंज, तो एक लेट्स फॉर एन एग्जांपल टेक हस्बैंड एंड वाइफ, इफ Hmm. बोथ आर अर्निंग, Hmm. so how does it affect their adaptability, adjustment, and all the inferiority complex that comes with it, and the ego that comes that I am also earning? So इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज टेल अस अबाउट दिस, लाइक एम्बिशियस कपल के बारे में बताइए। In Okay. such cases, what is the mental? So there are many couples जिनमें complexes आने लगते हैं that oh my husband is earning, or yeah, or my wife is earning more and I should be the That better is a one. problem. I Yes, know that. that Any is there. husband whose wife And earns it's more, not he is just gonna. now. आप देखोगे कि एक मूवी बनी थी अमिताभ बच्चन और जया की, अभिमान. Yeah, yeah. Do you remember that movie? That the guy is a singer Mm-hmm. and he discovers his wife also sings well, and his wife ends up being a better and more popular famous singer, singer. and now he's in that complex कि अरे मुझे छोड़ के सब अब मेरी बीवी को पूछने लगे, Right. and जब उसको रियलाइज होता है शी इज रेडी टू गिव अप, आई ओनली वांट माय हस्बैंड, आई डोंट वांट दिस करियर, बट इसमें बिटरनेस आ जाती है एंड ही ब्रेक्स द मैरिज, ब्रेक्स एज इन ही लीव्स हर अलोन विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हर ओन। तो कॉम्प्लेक्सेस में रिलेशनशिप्स को बहुत अफेक्ट कर सकता है कॉम्प्लेक्सेस, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट, अगेन लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, ये वर्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, दैट
who is better, who is not. We both belong to the same species only. हम इंसानी and we both belong to one humanity. We are not different, Mhm. right? Yeah. So we do have different qualities. You have reasoning, you have efficiency, you have calculation, you are a mathematician. You are different. A woman will have, like I said, softness, heart, kindness, you know, Empathy love, also. all these feelings. So if both of this, instead of going against each other, if they come together, तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. A man can become more creative, more soft, better. A woman can become better at skills. तो अलग अलग जाने से अच्छा साथ में जुड़ के एक आदमी और एक औरत एक दूसरे को बहुत बेहतर बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट ईच अदर. So basically more support and less ego. More support and less ego. Yes. Oh. Because there is always something. देखिए मैं कोई चीज में अच्छी हूँ, आगे वाला कोई और चीज में अच्छा Very है. true. So why compete? Yeah. Help each other. And be better Team up. together. Yes. Yeah, true. हमने मूवीज में देखा है all is well और बहुत हद तक इसने हेल्प भी किया है. तो ऑल इज वेल एटीट्यूड का अपने लाइफ में होना आपको लगता है कि जरूरी है? कुछ एक्सटेंट तक जरूरी है, पर आप हमेशा आपके इमोशंस को सप्रेस कर दोगे, कुछ बुरा हो गया और शुरू हो जाओगे अरे कुछ नहीं हुआ, ऑल इज वेल, और दैट विल नॉट ऑलवेज हेल्प. बिकॉज इसके लिए भी अच्छा एक वर्ड है, हाँ, इसको बोलते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी. यानी Okay. व्हेन यू फीलिंग सैड और अनहैप्पी और कोई आपको बार बार बोले कि अरे हंसना, खुश रहना, क्या दुखी रहता है वगैरह, it's not possible for a human being to be smiling and happy and sunshine Yeah. and Santa Claus all the time. Yeah, Right? true, true. We have emotions. तो हमको जब दुख महसूस करना चाहिए, हमको करना चाहिए. तो उसको बहुत ज्यादा हैमर करना कि तू हंस और तू खुश रहे, that is toxic positivity. Right. So to some extent situations में खुद को बोलना कि all is well, it is still in control is good, right? बट जब आपको जरूरत है आपके पेन को फील करने की, यू शुड फील दैट पेन. या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि हर चीज को इग्नोर, ऑल इज वेल बोल के इग्नोर करना नहीं, भी is not- इग्नोर नहीं करना है, उसको एक्नॉलेज करो, फील Okay. इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, फील इट एंड देन थिंक अबाउट सॉल्यूशंस एंड गेट आउट ऑफ इट. तो ख्याति जी, ये तो सारी साइकोलॉजी की बात होगी, बट एज अ फीमेल इन अ सोसाइटी, कोई इस टाइप के फीमेल डिप्रेस्ड या किसी भी टाइप के एस्पेक्ट के हमको दिखते हैं, तो व्हाट इज अ फीमेल्स रोल इन अनदर फीमेल्स लाइफ व्हेन शी सीज सच थिंग? So being a woman myself, Yeah. when I'm surrounded by femininity, when I'm surrounded by girls Mhm. who are secured, Yeah. who don't see myself as their competitor or get jealous from me, it's a very safe space for me to be surrounded with girls, to have healthy girls in my life, right? And women can understand each other better, empower each other, encourage each other to speak up, एक courage build करना कि नहीं, we are with you, go ahead, do it, right? तो एक healthy relationships लड़कियों में आजकल बढ़ भी रहा है, you know. Women are supporting each other because see all these years पुराने ज़मानों से women को already बहुत suppress किया गया है, right? पर अगर लड़कियां खुद ही लड़कियों के साथ ऐसा करेंगी, इसलिए मैंने शुरू में भी बोला ब्रेकिंग द जनरेशनल साइकिल, जो बहुत कॉमन नहीं कि हमारी मम्मी भी ऐसी थी, हमारी सास भी ऐसी थी, उसने भी मेरे साथ ऐसा की थी, तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूंगी, राइट? एंड जो अगेन कॉमन वर्ड है पड़ोस की आंटी, वो पड़ोस की आंटी लड़कों को तो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो लड़कियों पे कमेंट, देख कितनी छोटी स्कर्ट पहनी है, देख वो तो रात को लेट आई थी. तो विमेन आर इन मेनी केसेस द वंस हु आर ब्रिंगिंग अदर विमेन डाउन, राइट? एंड दिस नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि ऑलरेडी आप पे बहुत अत्याचार वगैरह इतने साल से हो गए हैं, अभी आप खुद ही खुद के इस पे कम्युनिटी पे अत्याचार कर रहे हो. ये कैसे बढ़ेगा? लाइक दिस women helping women, is it like the more security that the women secured they feel, the a more woman should feel more secured in herself. So when I know, if for example I'm with somebody who
is very good at something that I'm not very good at, Okay. right? Okay. So there are two things that I can do. I can appreciate her for having that certain skill or talent, Right. and praise her. Second, I can feel अरे उसके पास मेरे पास नहीं है, Get jealous. right? Getting jealous. But every woman should understand that you cannot have it all. If somebody has something good, मेरे अंदर कुछ अच्छा है तो आपके भी अंदर कुछ अच्छा है. Right. Don't compare yourself with Yeah. me, right? Instead, you appreciate me for who I am. At the same time, recognize that you are also good enough. Don't compare. वो jealousy आना ही नहीं चाहिए. ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई चीज में अच्छे नहीं हो. So एक sense of security होनी A चाहिए. sense of security is very important. कि Mhm. आप खुद भी You matter. you are good enough. Yeah. Yeah. And that's when you can appreciate other girls, that she's a wonderful girl, she's doing well, oh she's beautiful. Very true. What's the problem? म्यूजिक ने मुझे ख्याति जी बहुत हेल्प किया. म्यूजिक ऑलवेज अपलिफ्ट्स मी जब भी मैं सुनता हूँ. डू यू recommend म्यूजिक टू पीपल हु आर फीलिंग सैड और हु कंसल्ट यू? डू यू सजेस्ट देम कि सुनो म्यूजिक, सुनो, थोड़ा लाइफ चिल आउट हो जाओ? Oh, absolutely. So, यहाँ पे बस ऐसा है कि थेरेपी डज नॉट वर्क दैट वे. ओके. मतलब मैं ऐसा एडवाइस या सजेस्ट नहीं कर सकती अनलेस उनका वो चीज़ में इंटरेस्ट हो. अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा क्लाइंट थोड़ा सा आर्टिस्टिक है या म्यूजिक की तरफ इंक्लाइंड है, देन आई कैन सजेस्ट. वही अगर वो आर्ट या पेंट में, तो मैं उसको बोलूँगी पेंट करो. ओके, देयर आर वर्ड्स फॉर दिस. म्यूजिक थेरेपी इज अ थेरेपी, आर्ट थेरेपी इज अ थेरेपी. सो इट डिपेंड्स ऑन माई क्लाइंट एंड हिज इंटरेस्ट. अगर you. मुझे दिख रहा है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट कैन हेल्प हिम, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड म्यूजिक. एंड इट हैज हेल्प्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू. हाउ? म्यूजिक से ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वो संजू मूवी का एग्जाम्पल Yeah, दिया, yeah. दैट यू आर लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल सॉन्ग. तो आप एक्चुअली एफर्मेशन सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू गुड वर्ड्स एंड दे आर रिप्लेसिंग द नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, राइट? मैं अभी गाड़ी में वो शाहरुख खान का जो गाना है ना, आई एम द बेस्ट, वो सुनते हुए आई. तो इट गिव्स यू अ पॉजिटिव Uplift करता है. एनर्जी. यस. True. सो म्यूजिक helps you to a great extent. But you mean to say कि depends on the person also, like Yeah. person to person matter देखिए, करता है. कोई लोगों में वो म्यूजिकल, अच्छा इंटेलिजेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं. सो सम पीपल आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, एंड बट सम पीपल आर सेंसिटिव टू इट. दे अंडरस्टैंड द लिरिक्स, दे नो, वो उनको आवाज में दर्द भी समझ जाता है कि हाँ, अरे हाँ. सिंगर. हम्म. सम पीपल आर नॉट, which is okay, right? All the people, all the individuals are different. Yeah, they can't be same. So what works for you might not work for me. तो But मैं- all these things work. You mean music works, art works, painting Right. works. देखिए, अब अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं डांस करना है उसको, तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगी कि तुम डांस ही करो. तो यानी कहने का मतलब, जो मेरे लिए सूटेबल है जरूरी नहीं आपके लिए भी हो. आपके लिए कुछ कस्टमाइज्ड होगा, आपके हिसाब से सोल्यूशन निकलेगा. Right. तो इसीलिए थेरेपी में मैं एडवाइस देने नहीं बैठी हूँ कि मेरे पास कोई आया और मैं बोलूँ अरे योगा शुरू कर दो कल से. But वो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है ना कि इसका वो क्या है? Is it music or is it? Or do you ask them कि what do you like? So it's a process. Okay. We understand the person and we understand कि इसके लिए क्या best suited है. And again, we don't impose it. We do this. It's a choice. It's always a choice. Yeah. Okay. Because I think imposition से उनको फिर प्रॉब्लम होने लगती होगी कि जबरदस्ती मुझे कराया जा रहा है कहीं. Correct. So And it's- nobody likes that. Nobody likes Human imposition. beings का innate trait है freedom. Yeah. People want to be free. Yeah. All right guys, तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर ख्याति गोलछा. हमने बहुत सारी बातें की इनसे, learned a lot of things from her, and let's hope कि ख्याति जी को वापस बुलाएं स्टूडियो में, and we have other questions to ask her, but आज के एपिसोड में तो we can't ask anymore. So I would like Dr. Khyati to throw a last message to everybody. First, it was my privilege to be able to talk about women, how we feel, what are the challenges, and what could be the possible solutions that the world around us can offer us. So at the end, I'd just like to say that keep rising higher, have courage, speak out what you feel, and don't hesitate to seek help. Go out there, seek help, and make yourself better each day. Be happy, keep smiling. And don't forget to share, like, and subscribe the Sunny Side Up podcast. And guys, if you have any kind of question for Dr. Khyati, we have dropped down her email ID. You can directly contact her. नहीं तो आप नीचे कमेंट्स में भी डाल सकते हो, हम पूछ लेंगे. Okay? See ya guys.